Welcome everyone. Morning to one and all present here. Very good morning, all the people out there. Morning everyone. It's a super awesome day today. It's amazing, and today it's gonna be an even more amazing day because we have this live session with one of the top leaders of the industry, direct selling. Personally speaking, I'm into this industry from last almost 7 years, and it's really amazing. Just 7 years over in the industry, and joined here in this industry as a college-going student. But it's a great journey, guys. But anyways, I'm not here to talk about myself. I'm here today to talk about the one and only, as you all know, Mr. Siddharth Singh. As you all know, he's one of the top earners in the industry. And personally speaking, I'm very much excited today because I really admire him a lot. Like everyone has this one follower whom you need to follow, right? हर बंदे का एक फॉलोअर होता है जिसको आपको फॉलो करना है. और पर्सनली स्पीकिंग मैं सर को बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ. और उन्होंने जिस तरीके से अपने नेटवर्क को बनाया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एंड ऑफ कोर्स आउटसाइड इंडिया, इट्स रियली अमेजिंग. Right, my dear friends, I know a lot of people are here today, lot of calls, lot of messages and lot of questions and queries. अच्छा, मैं कल रात को एक्चुअली नोट्स बना रहा था और मैं देख रहा था आप लोगों के सवाल, क्या क्या सवाल आप लोग पूछ रहे हो. अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो कॉमन सवाल पूछा वो ये पूछा कि सर 1 करोड़ रुपए का करते क्या है. एंड दैट वाज वेरी फनी एक्चुअली. आई कांट आस्क दैट टू सर, बट डेफिनेटली some good questions also have been asked, or I'll be putting up the best questions in front of sir. एंड जो भी हमारा लाइव होगा आज का आप लोगों के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होने वाला है. इट्स गोना बी एन अमेजिंग इंटरेक्शन विद सर. एंड पर्सनली स्पीकिंग यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस लाइव. और आपके बिजनेस के अंदर आपको एक बूस्ट मिलेगा. इट्स नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, राइट? इट्स अ बिजनेस विच यू लर्न फ्रॉम अदर पीपल. इट्स अ बिजनेस फ्रॉम वेयर यू लर्न फ्रॉम द फुटप्रिंट्स ऑफ अदर पीपल. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ सर के लिए. Just give me a second, guys. Let me check whether sir is live or no. Almost there, guys. So guys, before I start, just let me know which all cities and states are you talking from. कौन से शहर से आप लोग इस समय हमको जुड़े हुए हो. Just go down and let me know from which city, which state are you talking in from. Shortly, we're going to have sir here in front of us. I can see people coming in from different cities and all this. Good to know people coming in from Mizoram. Mr. Lal, what's up, buddy? Ashutosh Shukla, Sudhir Kotian, Pankaj Chaudhary ji, very good morning. Jagdish Chaudhary. So people are coming from different cities and states. Stay tuned, guys. Shortly we are going to have Siddharth Singh sir live, and I'm really excited. He just had an ambassador meeting today, a meeting for all the ambassadors, and मैं बहुत ही शॉक हो गया कि मैंने बोला सर अगर आपका मीटिंग है तो हमारा लाइव कैसे होने वाला है. तो सर somehow finished it and he just is just going to be there in front of us in some time. Let me again check my room. Stay patient, guys. You're almost there. You're almost coming up, guys. Almost there, guys. Just give me a second. Alright, guys. The good news is sir aa rahe hain aur sir is going to take another 5 more minutes. Get ready. I hope you all can hear me. अगर आप मेरे को सुन सकते हो, go to the comment box and let me know if you can listen to me, if you can hear me, if you can see me. Thanks a lot. So guys, before sir comes, I just want to tell you people regarding the business, network marketing. It's an amazing industry, guys. ये वो industry है जहाँ पे आप अलग अलग लोगों के साथ काम करते हो. स्टूडेंट्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, हाउसवाइफ्स हो गए, रिटायर्ड पीपल हो गए. यू वर्क विद एन नंबर ऑफ पीपल. एंड इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट टेंजेंट, गाइस. यू मीट लॉट ऑफ पीपल. इतने सारे लोगों को आप मिलते हो अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से. माय गॉड, इट्स अमेजिंग. सो इफ यू आर ए ट्रैवल फ्रीक, अगर आपको घूमना बहुत पसंद है, आपको लोगों के साथ बात करना बहुत पसंद है, और उसी में अगर आप एक बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म फॉर यू. बिकॉज ये वो बिजनेस है, गाइस, जहां से आप घूम के बिजनेस कर सकते हो. ये वो बिजनेस है
जहां से आप बात करने से बिजनेस कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि आपको अलग अलग प्रोफेशंस के लोग मिलेंगे। अच्छा, मेरी टीम में आपको बताना चाहूंगा, फायर फाइटर्स है, देयर आर पुलिस ऑफिसर्स इन द टीम, देयर आर लॉयर्स, देयर आर डॉक्टर्स, एंड आई फील सो ग्लैड समटाइम्स, इतना मतलब कभी डर भी लगता है कि मैं फायर फाइटर से कॉल कर रहा हूँ, मतलब उससे बात कर रहा हूँ, कभी कुछ हो जाए, मतलब जस्ट इमेजिन वो लोग सीखते हैं हमसे। और पुलिस वाले से कभी कभी बात करता हूँ मैं, और उसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और उसको मतलब मैं सिखा रहा हूँ हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ इन्विटेशन, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ फॉलो अप। दैट्स हाउ यू बिल्ड बिजनेस। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आज आप पूरी कंट्री की सिचुएशन देख सकते हो, इस समय जीडीपी हमारी गिरी हुई है, और आप लोगों को पता है लॉकडाउन इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि जीडीपी गिर जाएगी। आपने देखा नहीं आज निर्मला सीतारमन का स्टेटमेंट, if we can't put a second lockdown because our economy will completely fall, they don't want to arrest the economy. तो माय डियर फ्रेंड्स, तो लोग करे तो करे क्या फिर? इकोनॉमी भी गिरा नहीं चाहते, और प्लस जिंदगी जो मतलब लोग इतना मर रहे हैं, मैंने वीडियोस देखे, बाप रे बाप, ऐसे ऐसे वीडियोस देखे गाइस, हमें हॉस्पिटल के अंदर लाशें पड़ी हुई है। सो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? इसलिए मैं कहता हूँ ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग गाइस, ये आप लोगों के जिंदगी के अंदर एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम लेके आ सकता है। आप भले कोई भी प्रोफेशन में, डजंट मैटर, आई फील यू शुड डू दिस बिजनेस। व्हाई? बिकॉज दिस इज वन सच बिजनेस वेयर यू आर गोइंग टू गेट अ ह्यूज नेटवर्क। आज से कुछ साल बाद नेटवर्क का बहुत डिमांड होगा। अच्छा, पैसा कितना कमा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, लेकिन आप कितने लोगों को जानते हो, या फिर कितने लोग आपको जानते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट। लाइक समवन, इफ आज से कोई 20 साल पहले पूछता मेरे को कि 20 साल के बाद क्या होता है, इंटरनेट ने कितना दबदबा बना दिया। देखो 20 साल पहले किसी को बोलते इंटरनेट के बारे में, उतना बिलीव नहीं करते, ऐसा और नो। लेकिन आज इंटरनेट इज एवरीवेयर, हर जगह एक ही चर्चा, इंटरनेट। सोचो अगर इंटरनेट से हम लोग जुड़े हुए इस समय, इंटरनेट को अगर मैं निकाल दूं आपके यहां से, तो सोचो क्या हो सकता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू नीड टू ऑलवेज सी व्हाट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर। वर्क सीइंग द फ्यूचर। आज से 10 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद क्या हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू, नेटवर्क मार्केटिंग इज वन सच फील्ड माय डियर फ्रेंड्स। आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद चीजें बदलेगी। लोग घर घर में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे, मैं सच बता रहा हूं आप लोग, घर घर में। I'm telling you people, there will be different companies, there will be network marketing going on because everyone needs a second source of income. हर बंदा चाहता है कि वो एक second source of income कमाए। और my dear friends, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये अर्ली टाइम है आप लोगों के लिए। इस समय, ये जो समय है ना, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्दी वाला, इट्स अर्ली डेज, अर्ली बर्ड डेज में कहता हूँ उसे, और सही टाइम पे इन्वेस्ट करना। अच्छा, आजकल चर्चा हो रही है क्रिप्टो करेंसी की। डॉग कॉइन नाम का एक बहुत अच्छा कॉइन है। अच्छा, मैं लेता नहीं हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि लेना है, लेकिन आपको लेना है तो आप ले सकते हो। 20-25 रुपए का है इस समय, और कुछ लोग बोल रहे हैं वो जाएगा, बिटकॉइन को बीट करने वाला है। एंड जस्ट इमेजिन, अर्ली डेज में जो खरीदेंगे शायद उसको शायद बेनिफिट हो सकता है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल दैट दिस इज द टाइम फॉर यू टू डू दिस बिजनेस। ये वो समय आपके पास जहाँ पे अर्ली डेज है, और ये वो समय है जहाँ पे हर बंदा, मतलब धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ रही है जगह जगह पे। धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग अलग अलग इलाकों में जा रही है, अलग अलग जगहों पे जा रही है। पहले मेरे रिलेटिव्स को पता नहीं होता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आज वो खुद ही कॉल करके पूछते हैं, ये तुम्हारी कंपनी है ना, तुम इसमें काम करते हो? मैंने बोला हाँ, इसी में काम करता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, थिंग्स आर रियली गोइंग ऑन। और जिस तरीके का अभी हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो रेगुलरिटीज, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब लॉ बनेगा, और कब हम लोग एक बार लॉ बन जाए तो भैया मजा ही आएगा। हम लोग एवरीवन, इट वुड बी अ लीगल प्रोफेशन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड ऑफ कोर्स गाइडलाइंस तो आ रखी है इसकी। और मैं बहुत खुश हूँ यार। आई स्टडीड इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग किया था, and I finished my engineering just like 2013. I entered engineering. 17 I passed out from my college, and since 17 till 21, 4 years since I finished my engineering, तब से मैं अभी कर रहा हूँ, और मजा बहुत आ रहा है गाइस। आइए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। इफ जस्ट चेक करता हूँ सिद्धार्थ सर आए कि नहीं है। ऑलमोस्ट देयर। आई नो लॉट ऑफ पीपल, 3000 से भी ज्यादा लोग इस समय हमें जुड़ चुके हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। इतने सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा है टू सर्च सिद्धार्थ सर, मेरे को टाइम लग जाएगा। ऑलराइट, मैं सर्च बटन में ऑन करके रखता हूँ। ऑलराइट, मे बी सर हैज नॉट येट एंटर्ड। ऑलराइट, सो गाइज, आज हम लोग बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं सर को। अच्छा, आपको कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। व्हाट फेवरेट क्वेश्चंस वुड यू आस्क सर? डोंट आस्क मी कि सर आप 1 करोड़ कमाते तो है, लेकिन 1 करोड़ का करते क्या हो? बताओ यार, लोगों ने ये सवाल भी पूछा है। 1 करोड़ कमाते हो ठीक है, पर करते क्या हो? अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी पूछा है सर आप कहाँ सॉरी सर, सॉरी गाइस, पॉज हुआ बिकॉज सर का कॉल आया था। सो वी आर एंटरिंग, सर इज जस्ट अबाउट टू एंटर। Just hold on guys, just give me a 60 seconds and I'll get you sir in front of you. 60 seconds. It's not that easy to get India's top earner guys.
So there are some people who are asking me questions like how to show up. अच्छा किसी ने पूछा कि sir how to show up presentation. Amazing, amazing. Guys, 60 more seconds and sir is going to be live. I'm just checking. Just give me a minute. So we almost have 3,000 plus people watching live now. Hold your nerve, guys. Almost there. So guys, almost there. Just a second. So guys, we're almost there. Just 1 minute. So we have sir coming in. So I'm just looking forward for sir. Just 1 minute, guys. Oops, I'm not able to find sir. Shit. Okay, just give me a second. Just waiting for sir. As soon as he comes, we are going to go live. A lot of people I see. Just hold on, guys. सबर का फल मीठा होता है. So sir usually don't use Instagram so much. So almost there. Guys, is it not audible? Is it audible, guys? Almost there, guys. Wait. Okay. So guys, good news is here. We are almost there. Sorry guys, almost there. अभी sir आएंगे. Sir, if you can hear me, if you have accepted me. Very good morning, sir. Very good morning, Very good morning. Sir, welcome. It's other way around. You are in a suit, and I thought that I'll be talking to you guys. I'm in a casual shirt, huh? सर कोई बात नहीं, आपके दर्शन हो गए, वही बहुत बड़ी बात है सर. अब थोड़ा थैंक यू सो मच. ऑल गुड सर. ऑलमोस्ट 3,500 लोग अभी लाइव हमें इस समय देख रहे हैं सर. और सर हम लोग बहुत वेट कर रहे थे आपके लिए, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट टाइम आप इंस्टाग्राम लाइव आ रहे हो सर. Yeah, that's right.
Yes, sir. How are you, by the way? I'm excellent here. I'm excellent. And just today, since 4 o'clock, when you called up, I was in a meeting with all the ambassadors. So 3.5 hours that meeting grilled me up. So now I'm fine and ready for you guys. Yeah. Chalo, sir. Thank you so much, sir. And sir, we are Yeah. like very excited. Like I discussed with you on phone कि हम लोग सारे youth है Instagram के अंदर, कुछ ज्यादा ही Yeah. भरे हुए Instagram पे, और Yeah. हम लोग बस वेट कर रहे थे कब हम लोग आपको सुने, क्योंकि सर ऑलमोस्ट 2 साल हो गया ज्वाइन करके और कभी आपको सुना नहीं. मतलब पॉपुलरली पीपल कॉल यू एज एशियाज वन ऑफ द टॉप चेक्स. So that today we will have a live discussion with you with questions and answers. Few questions from me and few questions from the people, the viewers out there. So are you ready, sir, for that? Yeah, I'm perfectly fine. I'm ready. Thank you. Thanks a lot, sir. Sir, and this session will last for, I don't know how much time it will last for, but definitely. I'm open to it. Thank you so much, sir. और sir बहुत ही लोग excited. Anyway, sir. So first of all, I want to ask you, how do you feel where you are today? आप जहाँ पे भी हो इस समय, how do you feel about your life, about your family, and of course your surrounding? How do you feel, sir? Definitely. I mean, I feel I'm very blessed. God has been very kind in this journey, and I mean, and most important for me is like I've been able to contribute to so many people's life. That is what drives me today. And I mean, I have read and I know that it is true. With power or with success comes responsibility. So I mean, now what motivates me? I still work. Quite a lot. Or I don't compromise on my work. And sometimes people ask me. I mean, I get up at 3:30 to take a flight somewhere to 6:30, then do 2 to 3 day workshops. So people ask me, why do you do that? I mean, what drives me? Frankly speaking, what drives me is when I go to the meeting, I see the people. Who come with a lot of hopes, and they are facing various challenges in their life. So what drives me today is to bring a smile in their face. What can I do? Whatever little I've learned, whatever little experience I have, how can I contribute to other guys' life? That is what today, frankly, drives me. So, like, I'll give a small example. Day after tomorrow, I am having a one-day workshop in Guwahati. So my leader Tarun Maheshwari, he calls me. He said, "Sir, now due to the COVID thing, now there is a new rule. If you come there, they will. The report what you will be carrying is not valid. So they will test you for COVID. They will quarantine you for 24 hours, and then only you will be allowed to step out of the hotel." I said, "Fine, yeah. I will come 24 hours earlier. I am ready to take the test and everything." Because again, when I see the people coming from so far with a lot of hopes in their heart that they want to become something or they want to achieve something, so just I focus key, what can I do from my little experience and from my little knowledge, whatever very little knowledge I have, how can I contribute to them? So that is what today drives me. So definitely where I am, I feel very, very blessed all the time. I am very thankful to God for it. And I'm very thankful to so many angels who have been there in my life in the form of my mother, my various uplines, my various gurus, my various teachers, the family itself, the friends, and a lot of support of the downlines and so many people. So definitely it's a privilege to be here. But at the same time, I do understand that it is my responsibility now to contribute to many people's life. Like one of my guru, he used to say a thing: when you are new in this business, you need time it will give you knowledge, it will help you in your growth. But when you are successful, the meeting needs you. So that's what I feel. And मुझे अभी किसी ने WhatsApp करा कि हिंदी में भी बताओ, तो मैं मिक्स करके बोल देता हूँ. मेरे गुरु हुआ करते थे, वो हमेशा मुझे कहते थे कि जब आप नए हो इस बिजनेस में, आपको मीटिंग की जरूरत है, क्योंकि आप मीटिंग में जाओगे तो आप चार्ज अप होगे, आप इंस्पायर होगे, आप आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ का होगा. और जब आप सक्सेसफुल बन गए तो मीटिंग को आपकी जरूरत है, ताकि आपकी सक्सेस से अदर लोगों को आप चेंज कर सको, उनकी एनर्जी को चेंज कर सको, एंड समवेयर डाउन द लाइन यू कैन इंस्पायर पीपल. सो दैट्स हाउ इट इज. सुपर सर, हम लोग बहुत ब्लेस्ड है सर कि मौका मिला आप लोग आपके साथ काम करने का. My privilege. It is also my privilege. थैंक यू सो मच. नेटवर्क मार्केटिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों से इतना कनेक्ट हो जाते हैं सर. मतलब यही एक ऐसी फील्ड है, दिस इज वन सच प्लेटफॉर्म. इफ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट नेटवर्क एंड विद पीपल, दिस इज द प्लेटफॉर्म. द इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट इट. पीपल पीपल पीपल. लोग हर दिन लोगों के साथ ही सुबह उठती है और रात को सोते भी है लोगों के साथ ही सोते हैं. तो सर that's the best life. That's the best life I believe one can have, because न सिर्फ लोग बल्कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह
2 दिन पहले अगर देहरादून था तो 3 दिन पहले अगरतला होता है, उससे 4 दिन पहले कलकत्ता होता है, उससे 2 दिन बाद गुवाहाटी होगा, फिर कोई और शहर होगा. सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बिजनेस कि इसमें कोई भी मोनोटोनस चीज नहीं होती. यू कीप ऑन विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस, यू कीप ऑन विजिटिंग मीटिंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल, एंड दैट्स व्हाट इट इज, इट मेक्स इट सो एक्साइटिंग. सुपर सर, मजा आता है सर. आप पोस्ट वोस्ट तो करते नहीं हो सोशल मीडिया, लेकिन सर जिस तरीके से आप बता रहे हो अगरतला कोलकाता, जैसे बेडरूम किचन हॉल हो गया, वैसे आप बता रहे हो. यू ट्रैवल अ लॉट राइट सर? Oh yeah. Because I mean after अभी स्पेशली पैंडेमिक के बाद में जब से खुला है, हालांकि अभी दोबारा से I mean वो है, बट एनीवे जब से प्रोग्राम वगैरह होने शुरू हुए तो एवरीबडी वाज वेटिंग, सो पीपल ने धड़ाधड़ डेट मांगते गए, मैं भी धड़ाधड़ डेट देता गया. तो जूम आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो जैसे फर्क होता है ना, एक जो स्टेज का जो एक्टर होता है, जब वो ऑडियंस को देखता है तो मजा कुछ और ही आता है. तो जूम में फाइन इस समय भी आई डोंट नो 1000 2000 3000 कितने लोग सुन रहे होंगे, बट जो वो लाइव ऑडियंस का को जब आप एड्रेस करते हो, जब उनका रिएक्शन आता है, स्पॉन्टेनियस चीजें होती हैं, तो दैट्स व्हाट इज अ मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर मी. सो या आई लव दैट. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर. तो सर बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी अभी ज्वाइन किए हुए, मैं आई एम डैम श्योर आधा से ज्यादा क्राउड अभी रिसेंटली ज्वाइन किया होगा. तो सर बहुत सारे लोगों का जो पहला सवाल होता है कि सर सिद्धार्थ सर के लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आई. तो सिंपल भाषा में सर, हाउ डिड नेटवर्क मार्केटिंग केम एंड व्हाट वाज योर स्ट्रगल यू फेस्ड इनिशियली? दीस टू क्वेश्चंस सर इन द स्टार्ट. ओके ओके. मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग तब आया जब शायद कुछ लोग सुन रहे होंगे, शायद वो पैदा भी ना हुए होंगे, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ 1998 की. ओके, रादर 97 एंड की मैं बात कर रहा हूँ. See, once मैं अपने कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में मैं क्रिकेट खेलता था. आई बीन अ कैप्टन ऑफ माय स्कूल, देन आई रिप्रेजेंटेड माय यूनिवर्सिटी, एंड सो आई वांटेड टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, बट ड्यू टू द माय नी इंजरी, माय स्पोर्ट्स करियर को मैंने आगे परसू नहीं कर पाया. तो जब मैं मेरे प्लेइंग डेज में था, एक बार तो मैं बॉम्बे गया था इंटर रेलवे खेलने के लिए. वानखेड़े स्टेडियम में हमारे मैचेस थे, तो वहां एक किताब बिक रही थी. उस किताब का टाइटल था लाइक गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर साइड ऑफ योर ब्रेन टू अचीव व्हाटएवर यू वांट. सो उस किताब ने मेरे को बड़ा अट्रैक्ट किया. मैंने वो किताब खरीदी, उसको पढ़ना शुरू किया, तो उसमें वेरियस टेक्निक्स थी कि कैसे हम अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर सकते हैं, लेवल में जा सकते हैं. थोड़े दिन बाद मुझे मौका मिला उस कोर्स को लाइव अटेंड करने का. और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 95 के आसपास. तो उस जमाने में वो कोर्स 6500 रुपए का था, 2 दिन का, एंड दैट टू नॉन रेजिडेंशियल. सो आप समझ सकते हैं, मतलब आज से 26-27 पहले 6500 रुपए का कोर्स, वो भी 2 दिन का. वो भाई, बट समहाउ आई मीन माय मदर गॉट मी एनरोल्ड, एंड वो कोर्स मैंने किया, फिर मेरी मॉम ने भी किया. तो वो जो उस कोर्स के जो इंडिया में सिखाते थे, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से एसोसिएटेड थे. सो उनकी वजह से मुझे इस सिस्टम को देखने का मौका मिला. दैट वाज वे बैक इन 98, अर्ली 98 टू बी प्रिसाइज, अप्रैल 98, 3 अप्रैल 1998 आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री. अब बात करते हैं इनिशियल चैलेंजेस के. यार चैलेंजेस तो बहुत सारे रहे, कुछ बताता हूँ. सबसे पहला क्या है, मेरा नेचर बहुत रिजर्व है. आज भी मैं सिर्फ जिन लोगों के क्लोज हूं उनके साथ आई एम वेरी कंफर्टेबल. मैं सोचूंगा भी नहीं कोई बात बोलने से पहले, कोई काम करने से पहले. बट ऐसे लोगों की जो संख्या है वो गिनती पे है. बट बाकी लोगों से आई एम वेरी शाय ना, आई एम वेरी रिजर्व. सो इस वजह से मेरा फ्रेंड सर्कल यार बहुत लिमिटेड था, और स्पोर्ट्स से कनेक्टेड था, तो मेरे स्पोर्ट्स के दोस्तों के अलावा मेरा कोई सर्कल था नहीं. मेरी अपलाइन मेरी मदर थी. सो ऑब्वियसली रिलेटिव्स वर कॉमन. तो मेरी मॉम ने क्या किया, मैं जो उनके रिलेटिव्स थे उनको अपनी अलग लाइन में जोड़ लिया. जैसे शी स्पॉन्सर्ड हर सिस्टर, तो जो मेरा कजन है वो यार वो मेरा ऑटोमेटिकली क्रॉस लाइन हो गया. देन शी स्पॉन्सर्ड हर ब्रदर, तो मेरा मामा हुआ. तो मी एंड माय मामा, हमारा एज डिफरेंस 15-16 साल का है, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. सो वो अलग लाइन में चले गए. तो मैं किसी रिलेटिव को स्पॉन्सर नहीं कर पाया. मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा लिमिटेड था. तो एक ही बहुत बड़ा चैलेंज मैंने उस समय फेस किया, कॉन्टैक्ट्स का. जो जैसे लोगों को मिथ होता है कि ये इस बिजनेस में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं. ऐसा कुछ नहीं है. अगर ऐसा होता तो आज मैं आपके सामने बात नहीं कर रहा होता, राइट. तो मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत लिमिटेड थे, कुशल. दूसरा यार मेरे साथ में चैलेंज क्या था, उस समय मेरे कॉलेज से, मेरे घर से जो कंपनी का ऑफिस था जहां प्रेजेंटेशन होती थी, वो करीब 24-25 किलोमीटर दूर था. तो दिल्ली के ट्रैफिक में 1.5-2 घंटे लगते थे एक वन वे वहां जाने के लिए, उनको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, अपॉर्चुनिटी मीटिंग दिखाने के लिए. अब मैं रोज 30-30 लोगों को इन्वाइट करता था, रोज मुझे 30 लोग हाँ बोलते थे.
एंड 96% टू 97% यार कोई नहीं आता था। मैं अकेला प्रेजेंटेशन बार बार एक ही मीटिंग में बार बार सुन के जाता था। दूसरा, अगर मेरा दिन कोई बहुत अच्छा जाए तो एक आधा गलती से कोई आ जाता था। तो पहला मेरा पूरा महीना ऐसे ही बीत गया। मेरा चेक आया 155 रुपए का इस इंडस्ट्री में, जो मेरा फर्स्ट पे चेक था। उसके बाद मेरा दूसरा पे चेक भी सेम। और ऐसा नहीं मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं डेली को भाई आज आज कॉल कर रहा हूँ कल शाम की मीटिंग के लिए 30 लोगों से। जब तक मैं यस नहीं करता था, मैं कॉल किसी न किसी को पकड़ता ही रहता था, कॉल करता रहता था। तो डेली में 30 लोगों को कम से कम रोज इन्वाइट करता था। दूसरे महीने का मेरा चेक आया 139 रुपए का, टू बी प्रिसाइज 139 रुपीज। आप मुझसे पिछले महीने का चेक पूछोगे, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्टली, लेकिन ये चेक मैं कभी भूल नहीं सकता। ओके। और जब 2 महीने ऐसे चेक आए तो जो मेरे दोस्त थे ना, उन्होंने मेरा कमाल का, उन्होंने जो मुझे बातें बोली, बड़ी कमाल की बातें बोली। उनमें से मैं कुछ तो आपको मर्यादा के तहत बोल भी नहीं सकता, लेकिन जिस उसका क्या था, यार तू तो बातें करता है, इसमें लोग बड़े पैसे कमाते हैं, उस समय हजारों रुपए कमाते हैं यार, तो 150-150 रुपए का तेरा चेक है, रोज तू जाता है भाई, विल नॉट डू दिस बिजनेस। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज क्या था, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस इंडस्ट्री में कोई कैरियर बनाया जा सकता है। एट द मोस्ट क्या, थोड़े ठीक है साइड पॉकेट के लिए, पॉकेट मनी के लिए काम कर लो, जैसे स्टूडेंट होते हैं, राइट। तो ठीक है भाई, थोड़ा काम किया पॉकेट मनी आ गई है। जैसे हाउस वाइफ होती है भाई, ठीक है थोड़ी बहुत हस्बैंड से इधर उधर चीजें लेती है तो पॉकेट मनी। सो इसको ऐसे ही देखा जाता था, स्कीम के तरीके से देखा जाता था। कोई सोच नहीं सकता था उस समय कि इस बिजनेस के तहत कोई कैरियर भी बना सकता है। सो यही एक माइंडसेट था। सो ये काफी सारे चैलेंजेस थे जो मैंने इनिशियल लेवल पर फेस किए। वाह सर, आजकल मैं देखता हूँ लोग थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल पे 2-3 प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलता है, उन्हें लगता है दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो जैसे आपने किया, मैंने 121 प्रेजेंटेशन की थी, तब जाके पहला लॉगिन मिला था सर। और सर मेरे हिसाब से, जैसे आपने एक चीज हमेशा आप बोलते हो कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कुछ भी करने के पहले द माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जब आपको फेलियर मिला तो सर आपका जो माइंडसेट था वो कितना स्ट्रांग था? हाउ इंपॉर्टेंट इज माइंडसेट इन योर इनिशियल डेज इफ यू हैव गॉट द विजन? देखो यार, मैं तो ये कहूंगा माइंडसेट इनिशियल डेज में ही नहीं, जब तक आप जियोगे आपको एक ही चीज बचाएगी, आपका माइंडसेट। करेक्ट। क्योंकि क्या है, चैलेंजेस हमें ऐसा लगता है कि शुरू में चैलेंज बहुत ज्यादा होते हैं, बाद में कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। चैलेंजेस के स्वरूप बदलते रहते हैं। या बिजनेस के अलावा लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं, मतलब बिजनेस के बाहर भी एक लाइफ होती है। तो देखो चैलेंजेस तो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा पहला चैलेंज क्या होता है, उसके लिए सबसे पहला चैलेंज होता है उसको स्कूल जाना, सुबह उठना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जितने भी आप जो छोटे बच्चे होते हैं 6, 7, 8, 9, 10 साल, जब आप उन्हें उठाते हो स्कूल जाने के लिए, तो लाइक आई रिमेम्बर माई सन, वो आज भी पोटी में बैठ के सोता है, पहले 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं उसको, तो वो उसके लिए एक चैलेंज होता है। फिर वो छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, उसके लिए होमवर्क बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है कॉलेज में, तो फिर कॉलेज में करियर बनाने का चैलेंज आ जाता है। फिर लाइफ में चैलेंजेस हमेशा चलते थे, चलते हैं, चलते रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर माइंडसेट की। इनिशियल डेज में आपको क्या चीज, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए? आपका माइंडसेट सिंपल होना चाहिए कि इस बिजनेस में, जैसे अगर मैं उस समय की बात करूं, देखिए हमारे सामने इतने उदाहरण नहीं थे कि लोग इतने सक्सेसफुल हैं, उतने सक्सेसफुल हैं। उस समय मैं 98 की अगर आपको बात बताऊं, 60-70 हजार रुपए महीने कमाने वाले ही लोग थे। लेकिन उस समय 60-70 हजार रुपए भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और लेकिन आप गिनती पे गिन सकते थे कि कितने कितने लोग हैं। तो गाड़ी वाड़ी ये वो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन आज क्या, आज इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो इनिशियल डेज में जो आपको माइंडसेट बनाएगा, आपको सिंपल सी एक चीज देखनी है कि इस इंडस्ट्री ने, इस कंपनी ने इतने लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। यानी कि यहां पर सक्सेस है। जब यहां पर सक्सेस है, इन लोगों ने किया, तो मैं भी कर सकता हूं। जैसे मेरा हमेशा मानना है, सक्सेस इज अ लर्नेबल स्किल। सफलता एक ऐसी चीज है, जो वो स्किल है जिसको आप सीख सकते हो। कि भाई आप ऑब्जर्व करो, जो लोग सफल है वो क्या कर रहे हैं, आप इजीली सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन। जब आप इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे, ऑब्वियसली आपको रिजेक्शन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आपने उससे डरना नहीं है, आपने उस स्टेज को पार करते जाना है। और वो कब होगा, जब आप यहां से स्ट्रांग होगे। एंड जनरली क्या होता है, हम लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं। वो अप्रोच करते हैं अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, जब वो उनका मजाक उड़ाते हैं या वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। वी शुड लुक एट इट प्रोफेशनली, राइट। कि मैंने आपको ये चीज बताई, आपको ये चीज समझ में आती है, बढ़िया, नहीं आती, इट्स अप टू यू, बट आई विल कीप ऑन गोइंग। सो दिस शुड बी द माइंडसेट। उस समय के मेरे जितने भी दोस्त थे, मैंने सबको ये बिजनेस बताया, और कोई भी मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आया। आज वही मेरे दोस्त हैं, आज फोन करते हैं, जब उनका कभी कभी फोन आता है, कहाँ है, मैं फोन नहीं उठाता, फिर मैं कहाँ था, यार यार प्रेजेंटेशन में था, अच्छा कहाँ है, बैंगलोर हूँ, अच्छा कहाँ है,
चेन्नई हो। अच्छा कहाँ है, आज यहाँ हूँ। यार तेरे मजे हैं यार, तू कभी यहाँ होता है कभी यहाँ होता है। मैंने कहा भाई ये मजे तेरे भी हो सकते थे, बट यू ऑप्टेड फॉर अ सेफ ऑप्शन। तुम एक सेफ जॉब में गए, या तुमने अपने पिताजी की सेफ दुकान पे बैठना पसंद किया। ओ भैया, आई टुक द रिस्क एंड दैट्स व्हाई हियर आई एम। सो वो माइंडसेट होना कि कम वॉट में आई मीन आई विल बिकम सक्सेसफुल, और हर एक नो के बाद में दुगनी डिटर्मिनेशन से जाना, दैट इज सो इस टाइप का माइंडसेट है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। रिजेक्शन शुरू से थी, है और रहेगी, इससे आपको डिजेक्ट नहीं होना, आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। सो जस्ट कीप ऑन गोइंग, बेसिक सेम रहेंगे, कीप ऑन शोइंग द प्लान, कीप ऑन मूविंग सो दैट यू बिकम सक्सेसफुल। यस सर, तो डेफिनेटली सर बहुत अच्छी तरीके से आपने आंसर दिया माइंडसेट को लेके। तो जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे सुन रहे हैं, सो सर ने एक चीज बोली आज माइंडसेट को लेके, वी हैव टू हैव दैट। सो ऑफ कोर्स सर, जब माइंडसेट ठीक होता है तो वी आर रेडी, मतलब हम लोग रेडी है। कुछ लोग सर कॉल करते हैं, बोलते सर आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, मतलब दे आर प्रिपेयर्ड टू डू व्हाटएवर इज गोइंग टू बी टेकन टू गेट सक्सेस। तो सर यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन योर चेक वाज नॉट सो बिग, यू आर हैविंग अ वेरी स्मॉल चेक, दिखाने लायक भी नहीं था, आपने ऑब्वियसली आपके एक तो सिस्टम हमारे अपलाइन ने बनाया होता है, एक सिस्टम आपको खुद डेली फॉलो करना पड़ता है। 24 आवर्स में आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बस आप सिर्फ सिस्टम हो तो अपलाइन के सिस्टम से जुड़े हो, आपको खुद का भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना है या फिर वो किताबें पढ़नी है, आपने भी एक सिस्टम बनाया होगा अपने लिए, जिसके कारण वो करते 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 फिर आप एक टेस्टिमोनी बन गए। सिस्टम क्या यार, जहन में यही सब चलता, हर समय यही चलता था। जब मैंने 98 में शुरू किया था तब भी, और जब 2008 में मैंने वेस्टीज शुरू किया था तब भी, माइंड में एक ही चीज चलती थी, व्हाट नेक्स्ट हु नेक्स्ट हु नेक्स्ट हु, किसको लिस्ट बनाऊं, किसको प्रोस्पेक्टिंग करूं, किसको प्लान दिखाऊं, 24 घंटे तो दिमाग में ये चलता था। उसके बाद जब भी समय मिलता था, जैसे 98 की मैं शुरू की बात करूंगा, फिर 2008 की बात करूंगा। 98 में जब भी बीच में समय मिलता था, ट्रैवलिंग करते हुए किताब पढ़ने की कोशिश करता था, राइट, क्योंकि उस समय और कोई मीडियम नहीं होता था, ऑब्वियसली कोई सोशल मीडिया तो था ही नहीं उस समय, कोई इंटरनेट ही नहीं होता था। तो उस समय किताब पढ़ने की कोशिश करता था ताकि खुद को चार्ज रख सकूं, कई चीजें सीख सकूं। ट्रेनिंग कभी मैंने कोई आज कभी मिस नहीं करी जिंदगी में, कभी भी। और जो भी ट्रेनिंग अटेंड करी उसके नोट्स बनाए, और उसके बाद रिवाइज करके उसको अपने अंदर उतारने का प्रयत्न किया। ये था 98 में। 2008 में जब मैं वापस आया तो चैलेंज दूसरा था, लोगों ने कहा दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा। और उस समय अगर आप उठा करके देखो, पूरे देश में बहुत चैलेंजिंग टाइम था इस बिजनेस को लेकर के। कंपनियां बंद हो रही थी, बहुत सारी कंपनी फ्लाई बाय नाइट हो चुकी थी। लोगों को ऐसा विश्वास नहीं था कि लाइक इस इंडस्ट्री में कोई रियल सक्सेसफुल हो सकता है, और ऐसी एक धारणा थी कि इस बिजनेस में सिर्फ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिखाने के लिए उनके पास खास कुछ होता नहीं है। सो उस समय जब मैं काम किया करता था, तो मैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैं हमेशा मेरे कुछ सेट ऑफ सॉन्ग्स हैं जिनको मैं सुनता था, लाइक बड़ी जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। 98 की बात करूं, तब से मैं एक गाना सुनता आया हूं जिसको मैं मेरा एंथम बोलता हूं, सिद्धार्थ एंथम बोलता हूं। दैट इज सिंपल, आई मीन जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, यस बॉस का गाना है, शान तारे तोड़ लाऊं, राइट। सो तो वो मैं आज तक सुनता हूं। और 2008 में आया तो सिंग इज किंग आई थी, तो मैं हमेशा, जब मैं सिंग इज किंग सिंग इज किंग सिंग इज किंग सिंग इज किंग मैं हमेशा सुनता था। और बीच में मुझे जब भी जैसे ही मेरे को समय मिलता था, सीएनटी खत्म हुई, कुछ खत्म हुई, तो एक सेट ऑफ मूवीज थी जिनको मैं देखा करता था। जैसे गुरु मूवी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, या ऐसी आज की डेट की अगर बात करूं, एमएस धोनी हो गई, भाग मिल्खा भाग हो गई, और ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग मूवीज हैं। सो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो अब दिन भर आपने काम किया, जैसे मोबाइल यूज होता है, उसकी बैटरी ड्रेन आउट होती है, हमारी बैटरी, हमारी एनर्जी भी ड्रेन आउट होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिचार्ज योर सेल्फ। सो उस रिचार्जिंग के लिए मैं अपने वर्ल्ड में रहता था, अपने म्यूजिक में, अपने वीडियोज में। मैं फालतू गॉसिप में उसमें मैं रहता ही नहीं था। मेरे को अब काम खत्म हो गया, अब मैं दुनिया से, मेरा कनेक्शन कट, मेरा ईयरफोन मेरे कान में लग गया, मुझे पता नहीं अब कहाँ जा रहे हो। अब जब अगली मीटिंग होगी तो मेरी बैटरी 100% चार्ज होगी एंड आई विल बी रेडी। So this is what I used to do. So this is how I handled these things. So mindset 24 घंटे यही कि what next, किसको प्लान दिखाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। So ये रहता था। So self talk के ऊपर काम करता था। सुपर सर, सुपर सर। सो सर यहीं पे एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, योर बिलीफ फैक्टर टुवर्ड्स सिस्टम। सिस्टम के ऊपर आपका बिलीफ फैक्टर क्या है, कितनी ताकत है सिस्टम के अंदर? सिस्टम को लेके सर आपसे एक सवाल पूछना था। यार सिस्टम के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। देखो हर चीज का एक सिस्टम है। अभी जैसे क्या है, आप ये मीटिंग वाया इंस्टाग्राम मेरे साथ में कर रहे हो, तो अभी इस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं। अगर हम ये सिस्टम हटा दें, क्या कोई तरीका है कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कोई तरीका नहीं है, राइट। तो दैट इज अ सिस्टम इटसेल्फ।
देन अगर मुझे इस समय आईपीएल चल रहा है, अगर मुझे आईपीएल देखना हो तो उसका सिस्टम है मेरे पास में, या तो नेट होगा या फिर मैं टीवी के ऊपर उसको देखूंगा। वो दोनों सिस्टम नहीं होंगे तो मैं आईपीएल नहीं देख सकता। अगर मुझे फ्लाई करना है, मैं अपने पंख लगा के नहीं उड़ सकता, बट प्लेन में बैठ के उड़ सकता हूँ, सिर्फ उड़ने का सिस्टम है। तो हर चीज का देखो आप, बहुत सिंपल है, एक सिस्टम बना हुआ है। सेम वे इस बिजनेस में भी, इस इंडस्ट्री में भी काम करने का एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को फॉलो करे बिना आपको या तो सक्सेस मिलेगी नहीं, और अगर गलती से मिल भी गई तो वो सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो बिना सिस्टम के तो कोई भी इंसान कुछ है ही नहीं। सो एवरीथिंग इज सिस्टम इटसेल्फ, विदाउट सिस्टम नथिंग वर्क्स। एंड यही पावर है सिस्टम को फॉलो करके। अगर सिस्टम सेंट्रिक ना हो फिर तो ये हो जाएगा कि यार ये एक दो लोग टैलेंटेड है, यही कुछ कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। बट सिस्टम की ताकत क्या है कि आज एक नेत्रहीन आदमी, आज एक अंधा आदमी जो देख नहीं सकता, आज उसका चेक 1.5 लाख रुपए है सिस्टम को फॉलो करके। एक आदमी जो सुन बोल नहीं सकता, आज उसका भी चेक 1 लाख रुपए के आसपास में पहुंच रहा है। आज 20-22 साल के लड़के भी पैसे कमा रहे हैं, एक 70 साल के बुजुर्ग भी पैसे कमा रहे हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड भी सक्सेसफुल हुआ, एक हाउस वाइफ भी सक्सेसफुल हुई। मीन्स पीपल फ्रॉम वेरियस एज, फ्रॉम वेरियस प्रोफेशंस, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, इफ अगर वो सक्सेसफुल हुए, डेफिनेटली यही सिस्टम की ताकत है। तो बिना सिस्टम के कुछ नहीं है। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, जैसे आपने मुझे कम्युनिकेट किया कि इस समय जितने ज्यादातर लोग जो हमें सुन रहे हैं वो बहुत यंगस्टर्स हैं, तो आपकी एज में क्या होता है, एनर्जी बहुत हाई होती है लेकिन लेवल ऑफ पेशेंस बहुत कम होता है। दूध की तरीके से ऐसे उबलता है और ऐसे नीचे भी जाता है। सो आपका प्लस पॉइंट क्या है, द हाई एनर्जी, बट व्हाट इज द नेगेटिव पॉइंट ऑन विच यू नीड टू वर्क ऑन, दैट इज द पेशेंस लेवल, राइट? सो देयर विल बी मेनी डिस्ट्रैक्शंस, पीपल विल बी टेलिंग यू वेरियस थिंग्स, सिस्टम के अगेंस्ट में, इसके उसमें, आपने उनकी नहीं सुननी। अगर आपको सफल होना, आपको बहरा बनना है, ओनली लिसन टू योर मेंटर एंड द पीपल whom you follow, whom you want to become, जिसकी तरह बनना चाहते हो, आपको उनकी बात सुननी है। दुनिया की बात सुनकर आज तक ना कोई सफल हुआ ना हो सकता। सो बी फोकस्ड, एंड समटाइम्स सक्सेस थोड़ी जल्दी मिलती है, समटाइम्स सक्सेस थोड़ी लेट मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी फोकस्ड एंड कंटिन्यू टू फॉलो द सिस्टम एंड कंटिन्यू टू वर्क, दैट्स ऑल। तो गाइज यू कैन सी दैट सिद्धार्थ सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जब इनिशियल डेज में स्ट्रगल मिल रही थी तो हाउ ही फॉलोड अ सिस्टम, और सिस्टम के थ्रू कैसे वो डेवलप करते गए। और ऑफ कोर्स सर, जब आपका सिस्टम से एक बार रूबरू, मतलब क्योंकि दिन रात सुबह शाम आपको हर दिन काम करना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे, आपको एक तरीका फॉलो करना है। तरीके सही होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं होती है, तरीका गलत होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो सर ने वो किया। तो सर ऑब्वियसली जब आपको सक्सेस मिलनी शुरू हुई, 30,000 का चेक भी बना होगा, 40 का भी चेक बना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं 30 और 40 में कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब पैसा पॉकेट में नहीं होता, पैसा दिमाग में चढ़ जाता है और उन्हें लगता है अब तो पूरा आएगा ही आएगा, एंड दैट्स वेयर दे गेट दैट फर्स्ट डाउनफॉल, एंड व्हेन दे गेट द डाउनफॉल दे क्विट। द फर्स्ट फेज व्हिच मैं हमेशा सर 3 बार कहता हूँ ये चीज बिजनेस के अंदर। पहले फेज में क्या होगा, नेटवर्क बनाओगे वो गिरेगा। दूसरे फेज में आप दोबारा नेटवर्क बनाओगे, दोबारा गिरेगा, इस बार लीडरशिप के कारण गिरा है। तीसरी बार दोबारा बनाओगे, अब अगर गिराने की कोशिश भी करोगे ना तो भी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि आपने वो छक दिया है, मतलब यू हैव टेस्टेड दैट थिंग। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज when you're in momentum not to get distracted, you have to be more focused, you have to think about more bigger vision. लोग, a guy has gone to point B, अब वो point भी मजे कर रहा है, he has to think about what next from here. So how important is that for you, sir? Because when you were earning 50,000 and 1 lakh, आपको भी तो विजन मिला होगा 10 लाख का. That's the most important thing. See, I believe that short-term success, you should always treat it as a motivation, right? And short-term failure, you should learn, you should take it as a maturity gain, कि मेरा short-term failure है, इससे मेरा maturity gain क्या हुआ, यानी कि मैंने इससे सीखा क्या। एंड शॉर्ट टर्म सक्सेस जो है, ये इसको हमें हमेशा एक मोटिवेशन के तौर पे लेना है। यार ये काम किया था, गुड यार, 50 में पहुंच गया, अब बढ़िया, अब 1, अब 1.5, अब 2, अब 2.5, अब 3। सो दैट्स हाउ, आई मीन, लाइफ शुड कीप ऑन ड्राइविंग यू, एंड दैट्स व्हाट। आप किसी भी फील्ड में देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा, आई मीन, दे आर ऑल ड्रिवन। लाइक आई रिमेम्बर, मैं बहुत पुराने, मैंने गावस्कर जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछा कि जब आप रिटायर हुए, आई मीन, यू स्कोर्ड उस टाइम आप, आई मीन, आप सबसे पहले थे 10,000 रन बनाने वाले, आपने उस समय इतनी सेंचुरीज किसी की नहीं थी, आप आराम से 2-3-4 साल और खेल सकते थे, 5-6-7-8 सेंचुरी और बना सकते थे, 4-5 हजार रन और बना सकते थे। उन्होंने कहा, देखो जी, आपने कब डिसाइड किया, हाउ यू डिसाइड दैट यू वांट टू रिटायर? उन्होंने कहा कि जब 4:30 बजे गेम खत्म होता था, 4 बजे मेरी जो नजर ना घड़ी पे जाने लग गई, तो वहां से मुझे पता लग गया, मैंने कहा भाई अब आप बाय बाय बोल दो। सेम थिंग मैं 4 महीने पर पहले, 20 दिन पहले, आई वॉज वॉचिंग विराट इंटरव्यू विद माई सन एज ही इज परस्यूइंग हिज कैरियर इन क्रिकेट। सो ही सेड द सेम थिंग, कह रहा जिस दिन अंदर से एंथू नहीं आएगा ना, उस दिन मैं परसों नहीं करूंगा। सो अंदर का जो एंथू है, असली काम तो वही कराता है।
एंड वो अंदर का एक एंथू कि यार आज अब कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए एक्साइटमेंट रहना, फ्लाइट पकड़नी है, अलार्म से पहले 3 बार आंख खोलना, अरे यार कितना टाइम हुआ कितना टाइम हुआ। तो लाइक इट इज, यू आर गोइंग टू अ डेट एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट इट एंड यू आर सो एक्साइटेड, आई मीन यू कैन नॉट वेट। सो सेम एक्साइटमेंट जब आपको आपके नाम की होती है, काम की होती है, तब आपको सफल बनने से कोई डेफिनेटली नो बडी कैन स्टॉप यू। सो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। And that's what it is. And वो आप अगर करते जाओगे आपको सब कुछ मिलेगा। और जो आपको मिल रहा है अगर आप उसी में खो जाओगे, देखो आप कोई भी आदमी का है, आप काम से किसी, मैं हमेशा कहता हूं वर्क इज अ गेटवे ऑफ सक्सेस। सो आपका जो कर्म है वो गेटवे है जो आपको सफल बनाएगा। सो आप सिर्फ कर्म करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपको चीजें मिलती जाएंगी। उसको एंजॉय जरूर करो, डेफिनेटली एंजॉय करो, लेकिन उसमें डूबो मत। उसी को उसमें सोल डूब जाओगे तो आप कर्म से हट जाओगे। उसको एंजॉय करते हुए बी मोर फोकस ऑन व्हाट यू सपोज टू डू, ऑन योर सक्सेस, बी मोर फोकस, देन आप कंटिन्यूसली ऊपर जाओगे एंड बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी लाइफ में जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो, एंड इट विल बी अमेजिंग जर्नी। सुपर सर, डेफिनेटली सर। सर आपने एक लाइन अभी ऐड किया था पिछले एक आंसर के अंदर, पेशेंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली सर मैं भी इसको बहुत अच्छी तरीके से अग्री करता हूँ। यूथ के अंदर बिगेस्ट जो प्लस पॉइंट है वो है एक्साइटमेंट, मतलब वेस्टीज मिली है, आई मीन नेटवर्क मार्केटिंग मिली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू पेशेंस लेवल, व्हेन दे डोंट गेट अ साइन अप या फिर दे गेट अ रिजेक्शन, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस। एंड सर आई देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग आज 40 50 उम्र के साल में ज्वाइन कर रहे हैं। देयर आर पीपल एट 70 years they have joined network marketing thinking one day they will also be on 1 crore rupees. Well, look at that. So how important is that patience? That was my next question to you. How important is patience for a youth especially, sir? इट इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली फॉर एवरीबडी, बट यूथ के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि उस उम्र में ना ठहराव नहीं होता, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। अब हाउ इंपॉर्टेंट इज पेशेंस इज सिंपल से कुछ सवाल पूछूंगा आप और मैं। आप अगर इतने बड़े हुए तो एक दिन में नहीं हुए, आपको 25 साल लगे इतना बड़ा होने में। अगर 25 दिन में 25 महीने में आप इतने बड़े नहीं हो सकते, चाहे आपको कोई भी कुछ भी पिला दिया जाए, कोई भी मल्टीविटामिन दे दिया जाए। सो हर चीज का समय के साथ होती है। इफ अ चाइल्ड रिमेन्स इन द वूम फॉर 9 months, सो इट इज देयर फॉर द 9 month, एट द मोस्ट एक आध महीना कम हो सकता है, बट वो 9 दिन में द चाइल्ड कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द वूम। सो पेशेंस इज ही हर चीज का आधार है। आज अगर आप बीज बोते हो तो आप कल फल नहीं पा लेते। आप आज ने बीज बोया है, उसका एक सिस्टम है, उसको समय लगेगा थोड़ा सैपलिंग बनने में, थोड़ा नन्ना पौधा बन के आएगा, उसकी टेक केयर करते हैं, देन वो एक हर चीज का प्रोसेस है। सो नेचर से अगर आप देखो, नेचर हमें हर चीज में पेशेंस ही सिखाती है। बिना पेशेंस के तो भाई कुछ है ही नहीं। एंड अगेन लोगों को ये गलतफहमी होती है कि दिस बिजनेस इज अ गेट रिच क्विक सिस्टम। दिस बिजनेस डेफिनेटली इज गेट रिच सिस्टम बट नॉट गेट रिच क्विक सिस्टम। हाँ, क्विक सिस्टम हो सकता है इन कंपैरिजन टू यहाँ 20 साल नहीं लगेंगे, वहां पर क्विक है। लेकिन अगर पहले महीने ही कोई व्यक्ति जुड़ के सोचे मेरा पहले महीने का चेक 50,000 हो या 1 लाख हो, तो ये नहीं होगा। ये अगर मेरे साथ हुआ मेरी सेकंड इनिंग में, क्योंकि मुझे पुराना एक्सपीरियंस था, मेरी पुरानी थोड़ी टीम थी, मुझे उसका एडवांटेज मिला। तो अगर जेन्युइनली कोई शुरू करेगा, उसे इंडस्ट्री को समझने में, काम करने में, नेटवर्क बिल्ड करने में समय लगेगा। और ये इसमें कोई खराब बात नहीं है। कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी सक्सेस से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उस जल्दी सक्सेस की अगर नींव सही नहीं होगी, जैसे कई लोग इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, कम ज्वाइन विद मी एंड आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, वो बहुत जल्दी में वो क्या कर रहे हैं, बल्क बाइंग करा रहे हैं टीम को, जिसका आधार ही गलत है। सो नेटवर्क को बिल्ड करने में, नेटवर्क को एजुकेट करने में समय लगेगा एंड आपको पेशेंटली वो समय देना चाहिए। बिकॉज आप जितना समय दे करके सिस्टम के ऊपर अपना नेटवर्क खड़ा करोगे, वो उतना मजबूत बनेगा, और जितना मजबूत बनेगा वो उतना ज्यादा लंबे समय तक आपको खिलाएगा, आपको सफलता देगा। सो उसमें शॉर्टकट का, लाइफ में शॉर्टकट का कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई सीन है ही नहीं। You have to grind yourself. It's a process which you need to follow. When you will follow, then and only then success will be yours. Otherwise, इधर उधर शॉर्ट टर्म मीन से अगर सक्सेस आ भी जाती है तो फिर वो टिकेगी नहीं, क्योंकि उसका बेस जो है that will be weak. So all of you guys, my message to you is that you should be patient while building the business. लेकिन पेशेंस का एक मतलब बता देता हूँ। कुछ लोग क्या सोचते हैं, काम कम करते हैं और सोचते हैं हमारे अंदर बहुत पेशेंस है। ना 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 ना, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको काम बहुत एग्रेसिवली करना है, रिजल्ट में पेशेंस रखना है। मुझे एक व्यक्ति मिले तो वो कहते थे, वो काम बहुत कम करते थे और कहते सर मुझ में आपने बताया मेरे में बहुत पेशेंस है। तो मैंने कहा आप मेरी बात को गलत समझ गए। आपको काम ऐसे करना है
super aggressively, but in results you have to be patient. That's it. Very important, guys. जितने भी लोग सुन रहे हो, very important line. Patience is the key. Patient pays dividends. Remember. तो सर, super awesome question coming up here is that लोगों ने पूछा है, how did you feel when you got to know your check was 1 crore? जो लोगों का सपना होता है, NITs, IITs, top colleges में लोगों का dream package होता है साल का. How did you feel when you earn the same money monthly in network marketing? कैसा लगा सर आपको? That feeling we want, sir. देखो, it was mix of emotions. सर इंटरप्ट करना चाहूंगा, आपका 100 रुपए का भी चेक था और वो 100 रुपए का चेक आज 1 करोड़ में बदला पर महीना, कैसा लगा सर? और वो भी जनरेशन प्लान में. यस सर. यार डेफिनेटली अच्छा तो लगा, बट ये कहूंगा मैं सरप्राइज नहीं हुआ या मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि मैं उसको पिछले 5 साल से विजुअलाइज कर रहा था. तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि अचानक मेरे साथ कुछ हो गया. तो आप शॉक्ड तब होते हो जब अचानक आपके साथ कुछ हो, ठीक है. बट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग इट एंड यू आर फोकसिंग ऑन टू इट, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब मैं 7वें आसमान पे उड़ गया या मैंने किसी को नीचे मुझे लोग दिखाई देने बंद हो गए. तो ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ. आई वॉज वेरी ग्राउंडेड, आई एम स्टिल ग्राउंडेड. उसका रीजन यही था बिकॉज आई वॉज विजुअलाइजिंग दैट एंड आई वॉज थिंकिंग दैट वो 5-6 साल पहले से जब वो हुआ, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कभी हेड में गया नहीं. और क्योंकि मुझे पता था कि ये होना है, तो इसलिए आई कुड हैंडल इट इजीली. So yes, definitely it was a great moment. It was a proud moment. बट ऐसा कुछ नहीं कि मतलब अब तो दुनिया ही बदल गई है, अब तो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं. इट वाज वेरी गुड, वेरी नाइस. बट आई वाज बिकॉज क्योंकि मैं इतनी बार उस चेक को विजुअलाइज कर चुका था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि समथिंग न्यू, ऐसा कुछ नहीं हुआ. बट यस, इट वाज डेफिनेटली एक्साइटिंग. नहीं, बहुत अच्छा आंसर, बहुत विजनरी आंसर है सर. तो लोगों को विजुअलाइज करनी चाहिए. जो भी चीज आपको चाहिए विजुअलाइज करोगे तो शॉकिंग नहीं रहेगी. इट विल बी अ कॉमन थिंग. No. Superb, sir. Sir, I wanted to ask you the next question here is that, sir, a lot of people get confused between these pyramid companies and who are selling packages, who are making people buy this 15,000, 20,000 packages, और लोग चले जाते हैं. And what is the difference between a good company and a bad, or you can say a pyramid company, sir? What do you say? Because of course इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे. Of course you should guide them because you are right now our inspiration. You are a leader from the front, right? So what would you say your definition towards it, sir? Because इंडिया में सर हर चीज मिलती है आपको. इंडिया में अच्छी चीज मिलेगी तो बुरी चीज भी मिलेगी. कल एक लड़की से बात कर रहा था, बोला मेरे को वैक्सीनेशन मिल रही है, मेरे पापा पॉलिटिशियन है. मैंने बोला क्या बात है, मतलब वी आर नॉट एबल टू गेट नाउ, बट उस लड़की को मिल गया बिकॉज पापा कौन है, पॉलिटिशियन है. सो करप्शन इज एवरीवेयर. सो देयर आर बैड एंड गुड थिंग्स बोथ द वेज. सो नेटवर्क मार्केटिंग का बैड नाम भी होता है, गुड नाम भी होता है. तो बैड नाम वो होता है क्यों है, कारण क्या है सर? दैट वी वांट टू हियर इट फ्रॉम यू. सी जैसे इस टाइप की कंपनीज और एक जेन्युइन कंपनी में क्या फर्क होगा? देखिए, सिंपल सी बात आपने समझनी है. नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कंपनी आपको क्यों पे करती है, राइट? जो भी आप टर्नओवर क्रिएट करते हो इसके ऊपर आपको पे करती है. अब अगर आप ऐसे सिस्टम में हो जहां पिरामिड सिस्टम में हो, बल्क बाइंग के सिस्टम में हो, जहां प्रोडक्ट या तो है नहीं या सिर्फ नाम का प्रोडक्ट है, वो बिकता है बीवी या पे आउट के लालच में, तो उसका जो आधार है वो क्या होगा? आप हमेशा दौड़ते रहोगे, राइट? आज दौड़ोगे, जितना आज दौड़ोगे उतना पे आउट मिलेगा. उसमें कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी. स्टेबिलिटी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जेन्युइनली प्रोडक्ट नेटवर्क जो है वो प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करता. और उसका आधार क्या है? द आधार और द बेस इज द ग्रीड. सो इट कैन नॉट गो ऑन, राइट? फिर दूसरा उसमें क्या होता है, आपने 2 लोगों के पैसे लगवाए, 2 ने 10 के लगवाए, 10 ने 20 के लगवाए, 20 ने 40 के लगवाए. अल्टीमेटली द बबल बर्स्ट. वाई? क्योंकि उसका जो बेस है वो बहुत कमजोर है. ठीक है, ये है. लोग फिर भी उसकी तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? बिकॉज अगेन शॉर्टकट मनी, सबको जल्दी है. लेकिन इन चीजों का क्या कोई आधार नहीं होता. इस वजह से ना वहां स्टेबिलिटी आ पाती और वो बात बनती नहीं है. दूसरी तरफ अगर आप यहां देखते हैं एथिकल कंपनी लाइक वेस्टीज, जहां जेन्युइन प्रोडक्ट है, ठीक है, वहां क्या है, आप नेटवर्क बनाते जा रहे हो, आपके नेटवर्क में वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं, नेचुरली कंज्यूम हो रहे हैं, जिनको आप बीवीपीवी हटा भी दो तब भी उनकी जरूरत है. जैसे आप देखो, लाइक कोई आदमी बिजनेस करे ना करे, लेकिन सबके घर में खाना बनेगा तो उनको कुकिंग ऑयल चाहिए. सबने सुबह उठ के नहाना है, धोना है, शेव करनी है, फिट रहना है, सप्लीमेंट्स लेने हैं, सारी चीजें लेने हैं. तो आज जो हमारे 400 प्रोडक्ट हैं ये जेन्युइनली कंज्यूम होते हैं. बेस्ट डील के और ऐड कर दूं फिर तो कोई अनलिमिटेड स्कोप हो जाता है. एक बार मैं बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. लेट 60s और अर्ली 70s की बात है. समवेयर इन यूरोप किसी ने केस किया एक नेटवर्किंग कंपनी के ऊपर में कि ये पिरामिड है.
तो बोला जी यार पिरामिड कैसे है? तो उसका जो लॉयर था उसने दो बड़ी कमाल की बात बोली, उसने उसने जज को अपना बात प्रूव करने के लिए उसने कहा जी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जुड़ गए, अब मान लो कोई भी लोग नहीं जुड़ रहे, आगे नई ज्वाइनिंग खत्म हो जाती है, तो भी क्या आपकी इनकम आएगी? राइट, अगर इस सवाल का जवाब क्या है? अगर जवाब हाँ है, जैसे सपोज करो इस मंथ हमारी कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती, वो भी आपका जो नेटवर्क है वो 60% 70% प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो करेक्ट करेक्ट। 60% 70% जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, आपकी जो इनकम आ रही है वो मोर देन 90% इनकम जो है एग्जिस्टिंग नेटवर्क के जेन्युइनली प्रोडक्ट कंज्यूम करने से इनकम आ रही है। तो दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ जेन्युइन कंपनी। तो इसलिए वहां पर आप सेफ हो, ये फर्क है एक जेन्युइन कंपनी में और एक पिरामिड कंपनी में। पिरामिड कंपनी किसके ऊपर बेस्ड है? वो हेड काउंट के ऊपर बेस्ड है। भाई इस हफ्ते या इस महीने कितने नए लोग ज्वाइन आए, वो उसी पे कमीशन बांट रहे हैं। पुराने नेटवर्क का एक ही काम है नए लोगों को लेकर के आना, तो वहां वो चीज सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन जब मान लो सारे लोग जुड़ गए, अब इस महीने कोई नहीं जुड़ता, उसके बाद भी क्या इनकम आएगी? जवाब हाँ है, तो वो कहां से पिरामिड हो गया? वो कहीं से भी पिरामिड नहीं है। राइट, दैट इज व्हाट वन नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग इज, अगर आज कोई ज्वाइन कर रहा है उसके पास कितना स्कोप है सक्सेसफुल होने का? आप अपना उदाहरण देखो, मैं आपका उदाहरण ही लेकर के चलता हूं। आपको 2 साल हुए हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, राइट, और आज आपका पेचेक 10 लाख रुपए से ऊपर है। मुझे भी इससे ज्यादा समय लगा था यहां पहुंचने के लिए, आप मेरे से बहुत आगे हैं आप। राइट, क्यों? क्योंकि जब आज आप आए, आपके पास में उतने आपने उतने, जब मैं आया था तो मेरे पास 40 प्रोडक्ट थे, आपको एंट्री मिली 250-300 लेवल के प्रोडक्ट से, आपके सामने सक्सेस स्टोरीज बड़ी थी, कंपनी स्टैब्लिश थी। सो इसका आपको एडवांटेज मिला। सो इसलिए जेन्युइन कंपनी में अगर आप काम करोगे तो आप ना सिर्फ आज आपका बेहतर होगा बल्कि कल सुरक्षित होगा। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को हम कहते हैं कि ये बिजनेस आपके, आप 2 4 5 साल मेहनत करो, नेटवर्क बनाओ, आपको लाइफ लॉन्ग पे करेगा, एंड आफ्टर यू इट विल सर्व योर फैमिली। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। 2008 में मैंने सुदर्शन मोहंती जी को ज्वाइन कराया था, एंड उसके बाद मैंने उनके साथ में उड़ीसा बिल्डअप करना शुरू किया। जब वो उसके बाद अच्छा उनका नेटवर्क बना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी उनको सक्सेस मिली। अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ टाइम के बाद में एक रेयर न्यूरो डिजीज हो गया, 2 साल 3 साल उनका इलाज चला, बट ही एक्सपायर्ड। तो उस समय भी उनकी आईडी का चेक 8-9 लाख रुपए था। अब जब वो एक्सपायर हुए, पहली बात तो 2 साल से वो काम नहीं कर रहे थे, तो रेगुलर 8-9 लाख रुपए घर में आए, नंबर वन। नंबर टू, आज उनको गए हुए 3-4 साल हो गए, बावजूद उनके उस आईटी का पेचेक पहले से 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ। तो ये बिजनेस, इसकी इतनी ताकत है, ये आपको, आपके आज को भी देख रहा है, आपके आने वाले कल को भी देखेगा, एंड इट विल सर्व द फैमिली, इट इज नॉट ओनली टू सर्व यू। If you build this business will take care of your not only your entire life but after that also. It is like जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, हम एक पेड़ लगाते हैं तो आज ही लगाते हैं, हम उसके छाया नहीं देने लगता है, आज ही हमें फल नहीं देने लगता। 2 4 5 साल डिपेंडिंग किस चीज का हमने पेड़ लगाया है, वो केपेबल होता है हमें छाया देने के लिए, फल देने के लिए। शुरू में जब हम पेड़ लगाते हैं हमें उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी है, खाद देना पड़ता है, दवाई लगानी पड़ती है, 500 काम करने पड़ते हैं, उसको उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। 5 साल के बाद में वो बड़ा हो जाता है, वो जिंदगी भर हमें छाया देता है, जिंदगी भर हमें पेड़ देता, फल देता है, हमारे जाने के बाद हमारी अगली जनरेशन को भी देता है। और मजे की बात है उसके ऊपर इतना ज्यादा शुरू की तरह ध्यान भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो पेड़ खुद मजबूत है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट। दैट्स हाउ इट इज। सुपर सर, सुपर आंसर सर। एक सवाल यहीं पे ऐड करना चाहूंगा, लोग बहुत स्पेकुलेट करते हैं पावर ऑफ जनरेशन प्लान जो आज हम लोग है, और आप इस समय सर इंडिया के सबसे हाईएस्ट चेक को जिसने जनरेशन प्लान के थ्रू वो किया है। हाउ पावरफुल इज जनरेशन प्लान जिसके अंदर मैं आप सब लोग इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो डेप्थ में जाके काम किया, आपको पता है उसका पावर क्या है। जैसे जैसे विड्थ बढ़ता रहता है और जैसे वो नॉट डेप्थ के अंदर जब विड्थ बढ़ता है तो उसका कमाल क्या हो सकता है। तो सर व्हाट इज द पावर ऑफ द जनरेशन प्लान अकॉर्डिंग टू यू? सी द पावर, अगेन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मैंने आपको उदाहरण दिया, ये जनरेशन प्लान के अलावा कहीं तो ये उदाहरण हो ही नहीं सकता। पहली चीज तो ये है, राइट, इसी से आप समझ जाओ, फ्रीडम ऑफ टाइम आपको सिर्फ जनरेशन प्लान ही दे सकता है। राइट, बाकी जगह तो यही है भैया, आदमी लाते रहो, आदमी लाते रहो, कब तक लाओगे भाई, उनका क्या होगा? ठीक है, अल्टीमेटली देन व्हाट, पीपल, लोग थकते हैं। तो इसलिए ये जो ताकत है ये सिर्फ जनरेशन प्लान में ही है, कि आपने कुछ समय काम किया। मेरे पास ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं कि लोग आए उसके बाद में, जैसे एक और उदाहरण है, पर्सन फ्रॉम उड़ीसा, भवग्रह माझी, वो पिछले 7 साल से व्हील चेयर पर है। 7 साल से व्हील चेयर होने के बावजूद भी उसका जो पेचेक है वो 7 लाख रुपए से ऊपर है।
पहली बात तो वो जो व्यक्ति है वो कोई बैंगलोर आईआईएम का नहीं है, वो एक ड्राइवर था, ठीक है, वो ड्राइवरी करता था, इस इंडस्ट्री में आया, इस बिजनेस में आया, सक्सेसफुल बना, उसके बाद में उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, पिछले 7-8 साल से वो व्यक्ति व्हील चेयर पर है, हर महीने 7 लाख रुपए से ऊपर घर लेके जाता है। ये जनरेशन प्लान के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, ठीक है। आज वन थिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला तुझे ये सामान खरीदना है, एक किसी व्यक्ति का 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं कराई। मैंने खुद इस बिजनेस को यार 600 रुपए से ज्वाइन किया था, उस समय जेब में सच बोलूं तो पैसे ही नहीं थे, कम से कम 600 रुपए का सामान लेना था, तो मैंने सस्ते सस्ते 2 प्रोडक्ट उठाए, नोनियस स्पिरुलिना 605 रुपए, 100 रुपए उस समय रजिस्ट्रेशन के हुआ करते थे, जिसमें आपको फॉर्म वगैरह, बिजनेस प्लान वगैरह मिलता था। तो भाई 600 रुपए की भी, 700 रुपए की भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, उसके मैंने प्रोडक्ट ले लिए। ऐसा दुनिया में आप मुझे कोई बिजनेस बता दो जिसमें आपने लगाया कुछ नहीं, सिखाने के लिए लोग तैयार हैं, मेहनत करोगे तो आपके साथ लोग मेहनत करने को तैयार हैं, और उसके बाद आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दो जो आपको, आपके आज को देखे, आपके कल को देखे, और एंड इट टेक्स केयर ऑफ यू, एंड नॉट ओनली यू, इट टेक्स केयर ऑफ योर फैमिली आफ्टर यू। दैट्स हाउ इट इज। सुपर सर, बहुत सही बताया सर। इसलिए मैं भी आया था, मैं पहले बाइनरी में काम करता था, 6 साल मैंने किया सर। बहुत फ्लक्चुएशन होता था, मतलब मैं क्या बोलूं आपको, कभी 1.5 लाख, कभी 25,000, इट वॉज अ बिग। जब से वेस्टीज में आया सर, इवन इन लॉकडाउन, द स्टेबिलिटी सुपर पावरफुल, बहुत ही पावर है, द पावर ऑफ जनरेशन इज टू गुड सर। सर मैं यहीं पे एक एड ऑन करना चाहूंगा, since you are into network marketing, where do you see network marketing in 2010 years from now? आज से 10 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग कैसी रहेगी, या फिर आप कैसे देखते हो इसको? I mean, it क्योंकि gives 10 me साल पहले आपने goosebumps. शायद 10 साल पहले आपने ये नहीं सोचा होगा शायद आप यहाँ पे होंगे, या फिर इतनी बड़ी आज इंडस्ट्री हो जाएगी। आज से 10 साल के बाद इंडस्ट्री कहाँ पे रहेगी सर? यस, 10 years from now, where will the industry be, sir? So, ladies and gentlemen, जितने भी लोग हैं, yes sir. It gives me goosebumps if I think about what will happen after 10 years. I mean, सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि अगर कहीं पर लैंड करेंगे तो जैसे फ्लीट्स ऑफ कार आती है ना, तो 40, 50, 60 मर्सिडीज आया करेंगी लेने के लिए, राइट। एक काफला टाइप चला करेगा। कितने लोग, अभी मैं मानता हूं कि 1 लाख रुपए से कम जो कमाते हैं उनको मैं मेरी भाषा में बीपीएल बोलता हूँ, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके लिए सरकार 2 रुपए चावल और 2 रुपए में उनके लिए गेहूं देती है, सस्ता राशन देती है। तो मैं कहता हूँ इस बिजनेस में अगर किसी की आमदनी 1 लाख रुपए से कम है तो वो अभी बीपीएल नेटवर्कर है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला नेटवर्कर है। now 10 साल बाद इसमें एक जीरो और लग जाएगा, उस समय संख्या होगी 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए महीने से जो कम कमा रहे होंगे वो बीपीएल वाले लोग होंगे, 10 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले लोगों की लाइन लगी होगी, लाइन की लाइन लगी होगी, ठीक है। ये एक सिनेरियो मुझे डेफिनेटली नजर आता है, और ये एक बहुत लुक्रेटिव कैरियर में बदल चुका होगा। आज ही लोग लाइक उदाहरण देने लगे हैं, तब तो मतलब इट विल बी द मोस्ट लुक्रेटिव कैरियर जिसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। जैसे मैंने आपको बताया 98 में क्या था, चैलेंज क्या था कि नोबडी कुड थिंक कि इस बिजनेस को एज अ कैरियर ले सकते हैं। अब वो सिनेरियो चेंज हो गया है, 10 साल के बाद तो पूरे तरीके से चेंज हो चुका होगा, और तब एक माइंडसेट लोगों का होना शुरू होगा। एक अभी क्या, भी जब कोई बच्चा पढ़ता है उसका माइंडसेट क्या होता है, एक अच्छी नौकरी में जाना, एक टिपिकल उस टाइप का माइंडसेट होता है। तो उस टाइम तक ये एक या जो लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं उन सबको पता होता है कि बिजनेस में ज्यादा पैसा है, बट देन अगर उनके पेरेंट्स पूछो, सबके अंदर एक डर होता है कि यार बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या हम गरीब लोग हैं, या हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, या पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है। लेकिन 10 साल के बाद में कोई ये नहीं कहेगा। 10 साल के बाद में सबको पता होगा अगर आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, आपको एक ऐसा बिजनेस है जो बिना कैपिटल के आपको सफल बना सकता है अगर आप में डिजायर है तो। So this will be an open secret and many people will be the beneficiary of it, and there will be, I mean, thousands of people जिनकी इनकम जो है वो 10 लाख रुपए महीने से ऊपर होगी। मैं लाख वालों की तो बात नहीं कर रहा, मैं 10 लाख रुपए वालों की बात कर रहा हूँ। 10 लाख एंड अबव कमाने वाले लोग जो हैं वो हजारों की संख्या में होंगे। सो दिस विल बी द सिनेरियो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसकी वजह से पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी।
इस बिजनेस का, एक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये आपके माइंड को चेंज करता है, आपके थॉट्स को डेवलप करता है, इट डेवलप्स यू एज अ पर्सन। हो सकता है अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता या आप इस बिजनेस में नहीं होते, आप कोई और बिजनेस करते या मैं कोई और बिजनेस करता, शायद मैं इतने पैसे कमा लेता, राइट? हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कमा भी लेता तो जो इस प्रोसेस में जो मैं सीख पाया, वो डेफिनेटली किसी भी पर्सनल बिजनेस में, किसी भी अन्य बिजनेस में पर्सनल ग्रोथ का स्कोप जो है वो बहुत कम होता है। इस बिजनेस का तो नीड ऑफ द आवर ही है, आपको कंटिन्यूस एजुकेशन में रहना, कंटिन्यूस अपने को डेवलप करना है और अपनी टीम को डेवलप करना है। सो दैट इज व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री। आज से 10 साल के बाद सिनेरियो विल बी टोटली, आई मीन, सुपर्ब, एंड देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर होगी। सवाल ये है, आज जितने भी लोग देख रहे हैं, आप उनमें से एक होंगे या आप उनमें से एक होंगे जो जो दोष देंगे सरकार को कि सरकार ने ये नहीं किया, लॉकडाउन कर दिया, मेरी इनकम घट गई, लॉकडाउन की वजह से ये आ गया। अरे लॉकडाउन सबके लिए था मेरे भाई। लॉकडाउन में मेरा हाईएस्ट चेक आया, मैं हाईएस्ट चेक इन द लॉकडाउन वाज 1 करोड़ 18 लाख, इट हैपेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सो दैट्स व्हाट दिस बिजनेस इज। सो आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे जो लॉकडाउन प्रूफ हो, रिसेशन प्रूफ हो, ऐसी लाइफ को जिएंगे, या आप एक ऐसी लाइफ को जिएंगे जिसमें आप कभी सरकार को, कभी अन्य लोगों को दोषी देंगे कि आज इनकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ? चॉइस इज अप टू यू। सुपर सर, बहुत मजा आया और आई एम डैम श्योर बहुत सारे यूथ कुछ सवालों का जवाब देके, मतलब जवाब दे सुन के बहुत पागल हो गए होंगे। और सर आई थिंक लास्ट 2 सवाल है। लास्ट सवाल जो मतलब पेनल्टी मेट वाला है वो सर मैनेजमेंट को लेके, सिंस हमने वेस्टीज की बात ही नहीं की सर, वेस्टीज मैनेजमेंट को आप बहुत क्लोज से जानते हो, स्पेशली बाली सर and all the company, Deepak sir and Kanwar sir. How strong is they? Because you have seen them in tough times, you have seen them in the good time, and you have seen them in the lockdown also. कैसे उन्होंने change लाया, आत्मनिर्भर plan, and how things went so well. How good is the management of Vestige? देखिए, आपने कहा मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूँ, बिल्कुल सत्य है। जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन करी थी तो उस समय जो ऑफिस में फ्रिज रखा हुआ था, ये वो फ्रिज था जिसको बाली साहब अपने घर से लेकर के आए थे। तो मैं वहां से आप जर्नी शुरू करता हूँ। और जब शुरू में हम उड़ीसा बिल्ड करते थे तो मैं, अगर स्टार होटल बंद हो जाते थे जैसे, या अच्छे रेस्टोरेंट, आपको पता है उनका एक टाइम फ्रेम होता है, तो बाली साहब ने, मैंने कई बार रोड साइड ढाबे पे बैठ के भी खाना खाया है, ठीक है। और हमने ऑटो में भी ट्रैवल किया है, जनरल में भी ट्रैवल किया है, अगर जहाँ कुछ नहीं रहा। तो वहां से हम इस बिजनेस को लेकर के आए हैं। तो देखिए, वो एक विजन ही था, या एक सोच थी, भविष्य की सोच थी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। नाउ और हर अलग सोचना, जैसे आज आपने मुझे बताया ज्यादातर लोग यूथ हैं जो इस समय सुन रहे हैं। आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले कंपनी ने इस चीज को रियलाइज कर लिया था, इस वजह से उन्होंने अपनी पैकेजिंग को चेंज करा, प्रोडक्ट्स ऐसे लेकर के आए जिससे यूथ कनेक्ट कर सके, ताकि ये एक डैड्स कंपनी ना बन जाए। सो वो एक विजन ही था। सो डेफिनेटली द कंपनी इज वेरी वेरी विजनरी, हर एक चैलेंज को लेकर के चली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंपनी इज वेरी ग्रोथ सेंट्रिक। कंपनी ने हमेशा से ग्रोथ के लिए काम किया है। कंपनी ने वो सोचा जो कभी किसी ने नहीं सोचा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, जब मैंने ज्वाइन किया था तब बाली साहब के पास में CR-V हुआ करती थी, तो वो कार मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं सर को बोलता था, मैंने कहा सर कोई भी टारगेट दो, बताओ कितने करोड़ करना है, मुझे अब ये गाड़ी दे देना। तो जब जब मुझे मर्सिडीज मिली तो मेरे, उस समय बाली साहब के पास भी मर्सिडीज नहीं थी, वो भी CR-V चलाया करते थे। तो आप सोचो, उस समय वाली कंपनी का विजन था कि हम एक लग्जरी बुक निकालेंगे, हमारे इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में लग्जरी कार होगी। वो सोचा तब तो वो दिन आया। तो उस समय वो सोच रखना वो एक कमाल था। उसके बाद हम इतने 1000 करोड़ की कंपनी बनेंगे, ये सोच रखना। फिर हम ग्लोबल, एक इंडियन कंपनी ग्लोबली जाकर के रूल करेगी, टॉप इसमें आएगी, जहां आज हम पहुंचे, तो वो सोच रखना। आज से, अभी से 10 साल बाद की सोच रखना। तो ये मैनेजमेंट के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैनेजमेंट इज ऑलवेज बीन ग्रोथ सेंट्रिक, एंड सो मेरे ख्याल से इसी चीज से हम इन बातों को का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड के टाइम में भी किस तरीके से चीजों को मैनेज किया गया। आप देखो, मेंटेन नहीं किया, तकरीबन 27,000 लोगों का लेवल कंपनी ने किया, जो रेगुलरली 3 महीने अपना लेवल, जिन्होंने आपका दिसंबर, जैन फेब या मार्च में कोविड आया था, दिसंबर जैन फेब में जिन्होंने अपना लेवल मेंटेन किया था, कंपनी ने अपने पास से उनके लेवल मेंटेन करे, ऐसे 27,000 लोग थे।
जिनको उस समय छोड़ा नहीं गया, या जिनको कोऑपरेट किया गया, या जिनको साथ लेकर के चला गया। सो ऐसे टफ टाइम में भी तभी हम उसको पार कर पाए। ऐसे टफ टाइम में परमिशंस लेना कि एसेंशियल्स में ये चीजें आए, एसेंशियल्स के लिए प्रेस करना, और ग्राउंड चैलेंजेस इतने ज्यादा थे, उसके बावजूद भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना, और सारी प्रैक्टिकल चीजों को देखते हुए, इस वजह से हम लोग को कोविड ने बिल्कुल भी हिट नहीं कर पाया, या मैं कहूंगा ना के बराबर हिट कर पाया। एंड ऑल बिकॉज इट वाज मैनेजमेंट ओनली। एंड फिर समय रहते हुए लाइक प्लान में चेंजेस, या हर चीज, सो दैट्स व्हाट इट इज। एंड नाउ कंपनी इज वर्किंग 10 years डाउन द लाइन फॉर अ डेकेड, जो सवाल आपने पूछा। सुपर सर, मजा आ गया सर। हम लोग को तो इतना कभी सोच मिला ही नहीं था पिछली कंपनी में, और इस कंपनी में तो अलग ही लेवल था सर। आई एम ब्लेस्ड कि हमें वेस्टीज मिला और सर आप मिले हम लोग। और सर लास्ट में जो सवाल था मेरा वो यही था, ऑब्वियसली आपके पर्सनल सवाल को लेके सर। जैसे आपका हॉबी क्या है? एंड आई एम श्योर मैक्सिमम टाइम ऑफ द हॉबी आपका यही होता है आपके किड के साथ, मतलब आपके बच्चे के साथ। एंड यू कीप, व्हाट इज योर ड्रीम सर? व्हाट्स योर हॉबी बेसिकली राइट नाउ? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू टुवर्ड्स योर चाइल्ड। My child is like my son plays cricket because I myself wanted to be a cricketer. So I try to spend good amount of time with him. Like every morning, चाहे मैं 3 बजे सोऊं, चाहे मैं 2 बजे सोऊं, I get up at 5 o'clock because 6 सवा 6 मुझे उसको ट्रेनिंग के लिए लेके जाना पड़ता है, जहाँ उसके कोच जो है उसको फिजिकल जिम के लिए और बाकी चीजों के लिए ट्रेन करते हैं। So whenever I am in town, so I get up at 5 o'clock. I mean, I am with him in the morning, and then कोशिश करता हूँ जो मेरी अपॉइंटमेंट्स हो, जब भी मैं टाउन में हूँ, तो वो दिन में मैं खत्म कर दूं, ताकि इवनिंग 3:30-4 बजे से मैं उसके एकेडमी में जा सकूं, उसके साथ में मैं उसका प्रोग्रेस होते हुए देख सकूं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकूं। सो दैट इज व्हाट आई डू एज फार एज द हॉबी फ्रंट इज कंसर्न। इसके अलावा लाइक आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, किताब तो मैंने पढ़नी बंद कर दी है पिछले 1-1.5 साल से, बिकॉज आई सर स्पेंड किसी ने पूछा था फेवरेट नेटवर्क मार्केटिंग किताब कौन सी थी आपकी पूरी जर्नी जी में? एक किताब, ऐसी कोई पूरी किताब है जो आप रेकमेंड करोगे लोगों के लिए? लोगों ने सवाल, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे। ओके, एक मुश्किल होगा, 2 बोलता हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड थिंक एंड ग्रो रिच। So this, according to me, yeah, Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy and Think and Grow Rich by Napoleon Hill. I mean, they are excellent. They have been excellent book in my life, जितनी भी मैंने अब तक पढ़ी है। And अभी पिछले 1.5 साल से मैंने कोई किताब पढ़नी बंद कर दी, because किताब पढ़ने की जगह I keep on listening to the teachings of my spiritual guru, and then I chant so many things, and then I meditate so many things. मेरे हिसाब से like जो अगर मैं कहूँ दुनिया में सबसे ज्यादा ambitious लोग कौन होते हैं, so they are not any businessmen, any business people in the world, वो नहीं, मैं the real yogis जो कि गॉड को enlightenment के लिए जाते हैं या गॉड को हासिल करना चाहते हैं, उनसे बड़ा like ambitious कौन होगा कि जो अल्टीमेटली जो क्रिएटर है गॉड, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। So I I try to learn these techniques, practice it myself, and then I try to utilize these techniques to teach people how कैसे वो उसको डेली टू डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रेट हाइट्स में लेके जा सकते हैं। बिकॉज मेरा मानना है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए यू शुड हैव अ 200% सक्सेसफुल लाइफ। 100% यू शुड हैव मटेरियलिस्टिक सक्सेस, राइट? मटेरियलिस्टिक सक्सेस आप सबको पता ही है, इज योर पे चेक, आप कौन सी कार ड्राइव करते हैं, आप कौन सा घर में रहते हैं, वो है आपका 100% मटेरियलिस्टिक सक्सेस। एंड 100% स्पिरिचुअल सक्सेस, दैट इज स्पिरिचुअल सक्सेस मीन्स का मतलब ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आपको एक पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो करो, वो बात की बात है। टू बिगिन विद इज योर रिलेशनशिप विद द गॉड इन एनी फॉर्म, आप जिस भी फॉर्म में गॉड को मानते हो, दैट इज अप टू यू। बट उससे आपका रिलेशनशिप कैसा है? अगर वो रिलेशनशिप आप कहीं ना कहीं कनेक्ट फील करते हो, तो आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ फील करोगे, वीक टाइम में आप वीक नहीं होगे, एंड दैट इज व्हाट गिव्स यू इनर पीस। एंड इनर पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्निंग मनी के साथ साथ, बिकॉज बहुत से उदाहरण है। अगर मैं आपसे पूछूं कैफे कॉफी डे के मालिक की डेथ कैसे हुई, तो हम सबको पता है अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सुसाइड कमिट किया, या देयर हैव बीन मेनी फेमस एक्टर्स हु हैव कमिटेड सुसाइड इन देयर लाइफ। उनकी लाइफ में पैसे की या फेम की कमी नहीं थी, बट अलॉन्ग विद द फेम एंड मनी यू नीड द इनर पीस, then and only then you can you can live a great life. Like अगर आप स्टीव जॉब्स को देखो, he came in India and like वहां से, yeah, he used to meditate. If you same thing about Rajnikant and various people. So real success क्या है कि you have all the materialistic success in the world, but at the same time you feel peaceful here. Your success, your money should not give you sleepless night, and then it is of no use. So that's how it is. सुपर सर, सुपर सर, थैंक यू सो मच सर। वो बहुत अच्छा था, इनर पीस और
होपफुली सर हम भी एक दिन आपके लेवल पे, मैं नहीं पूरे टीम जितने भी लोग हैं इस समय देख रहे हैं सर, डेफिनेटली ब्लेस कीजिए सर हमें और आशीर्वाद दीजिए सर, हम भी बहुत आपकी तरह ही चुपचाप काम करके एक बड़ा रिजल्ट निकालेंगे इस पे। डेफिनेटली कुशल, व्हाई नॉट। एंड लाइक जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपकी सक्सेस को देखता हूँ और लोगों की सक्सेस को देखता हूँ। जैसे नाम का अगर मैं लूँ, मैं दिनेश हो सकते हैं, सेंथन पॉल दिनेश कर्दम हो सकते हैं, या शिवम गोस्वामी हो सकते हैं, या सेंथन पॉल हो सकते हैं। जब मैं आप लोगों की और भी मुझे किसी का मैंने नाम मिस किया हो तो आई मीन नो, नथिंग अगेंस्ट, बट जो जहन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। जब मैं आप लोगों की सक्सेस को देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं यही चीज लाइक आप लोगों से चाहूंगा कि आप इस जो जर्नी आपने शुरू करी, जो सफलता आपने शुरू करी, आप और भी बहुत ज्यादा सफल बने, बट एट द सेम टाइम आप इस लेगेसी को आप कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि आगे आप और बहुत लोगों को आप इंस्पायर तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप उनकी लाइफ में भी चेंज लाने का एक जरिया रेगुलरली आप बनते जाएं। सो दैट्स व्हाट इट इज एंड दैट्स व्हाट आई विश फॉर ऑल ऑफ यू। और जितने भी लोग आज आप देख रहे हैं, दिस इज एन अमेजिंग सिस्टम गाइस। So just put all your heart and soul into it and be focused. And if you put your heart and soul into it and you follow the system, definitely a great success is waiting for you. Your success story is waiting for you. So एक किताब है ऐसी जिसके अभी 300 पन्ने खाली हैं, क्योंकि उस किताब में आपकी सफलता की कहानी लिखी जानी है। So उस कहानी के बीच में और आपके बीच में एक समय है, 3 4 5 प्रोबेबली 6 साल का समय, और कुछ डिसिप्लिन और कुछ चीजें अगर आप ही उसमें ऐड कर दो तो यू कैन बी वेर एवर यू वांट टू बी। एंड पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू एज यू आर कमिंग इन द थर्ड, सो थर्ड फोर्थ फिफ्थ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट सेशन सर विद तो ऑल आप ऑफ यू एसबीसी गाइस। को लेके आप अगर बताओगे सक्सेस बाय चॉइस, अभी सर आप इतना प्रमोट करते नहीं हो ना, तो पीपल डोंट नो अबाउट इट, हाउ द पावर ऑफ एसबीसी। मैं अभी शैंतन पॉल को मिलने गया था वहां पे अगरतला, शैंतन एंड एबल एंड न्यूआई, ये लोग सर इतना मतलब पागल हो गए, सर को बोले सर एसबीसी आप बैंगलोर में रखो, हम लोग अगरतला से बैंगलोर आएंगे हजारों किलोमीटर, मतलब पीपल आर मैड अबाउट इट, सक्सेस बाय चॉइस। आई एम अ बिग फैन सर, मैं दो कर रहा हूँ, दिल्ली में भी कर रहा हूँ और आपके साथ वापस मैं कोलकाता भी करने वाला हूँ सर। व्हाट इज द पावर ऑफ एसबीसी सर? See, success by choice or in short form SBC is a training program जिसमें मैं वैसी की कोई बात नहीं करता, मैं प्रोडक्ट की कोई बात नहीं करता। ऑल आई टॉक अबाउट इज वेयर यू आर, आप अभी आज लाइफ में कहाँ हैं, पहली चीज। पीपल राइट अबाउट इट। एंड देन वेयर यू वांट टू गो, दिस इज द सेकंड थिंग। एंड व्हाट स्टॉप्स यू, आपको क्या चीज रोकती है वहां जाने के लिए। बहुत बार लोगों की एनर्जी अटकी होती है, उन्हें पता भी नहीं लगता। ग्रजेस होते हैं जिन्हें पता भी नहीं लगता, तो एनर्जी गलत जगह में लगती है। वो एनर्जी को रिलीज करना, वेरियस टेक्निक्स हम सीखते हैं जिससे ना सिर्फ हम लाइफ में जो चाहे वो करें, बट हम बहुत बैगेजेस लाइक जैसे क्या लाइफ में हम सभी लोगों हमसे खुद बहुत गलतियां होती हैं, और जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं उनसे गलतियां होती हैं। हम लाइफ में कई बार उनकी वजह से हर्ट होते हैं, कई बार वो हमारी वजह से हर्ट होते हैं। ये बैगेजेस हम अपनी लाइफ में कैरी ऑन करने लगते हैं। एंड जनरली क्या होता है, जब हम छोटे बच्चे थे, आप देखिए हम उस समय बहुत खुश रहते थे। कारण क्या है कि उस समय हमारे अंदर कोई बैगेज नहीं था। अगर अभी हमें खुश हैं, अभी किसी ने टॉफी दी तो वी आर वेरी हैप्पी, वो खेल रहे हैं। किसी ने डांट दिया हम रोए, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई तो आधा कहते थे जिंदगी में बात नहीं करूंगा, लेकिन 1 घंटे बाद हम दोबारा दोस्त बन के भूल करके खेल रहे होते थे। तो उस समय हमारा कोई बैगेज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ में बड़े होते हैं हमारे अंदर ईगो आने लगती है। उसके बाद क्या होता है, जरा सी कोई बात होती है हम घर परिवार में बात करना बंद कर देते हैं, हम दोस्तों से बात डिस्टेंस कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है ना, ये हमारे अंदर यहाँ जमा होने लगती हैं, और इस हम एक बहुत बोझ लेकर के, भार लेकर के जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। एंड उस जब जब वहां सेशंस में जब ये चीजें हटती हैं, तो हमें एक तो बहुत हल्का महसूस होता है कि अगर किसी ने भी, इफ आई वांट टू से सॉरी टू समबडी, मैं कह नहीं पाया, तो बेशक वो इस दुनिया में नहीं भी है, तो वी डू अ सेशन वेयर वी कम्युनिकेट टू द पीपल who जो आज यहाँ नहीं भी है। We say love you to them, we say thank you to them for whatever they have done in our life, and even if we have done anything wrong, so we say sorry to them. And then उसके बाद में जीवन ऐसा लगता है जैसे कोई लाखों टन का बोझ मेरे ऊपर से हट गया हो। So it makes you totally clear, totally transformed. You feel very light, relaxed, and then you are ready to move on in your life. Like मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आप कभी ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, तो आप अपना सामान लगेज की जगह में रखते हैं, आप अपने सर पे नहीं रख के चलते। लेकिन जिंदगी में हम ये बात भूल जाते हैं, हम बहुत सारे बैगेजेस लेकर के चलते हैं। मुझे 1 दिन पहले ऐसे बोला, मुझे 10 दिन पहले ऐसे बोला, और ये सारे बैगेजेस हमें पता भी नहीं लगता ये वायरस के तरीके से हैं। अगर किसी के भी फोन में वायरस होंगे, वो उतना फोन उसका स्लो होता जाएगा। तो ये वायरसेस हमें स्लो करते हैं। सो ये वायरसेस को हटाने का मैं प्रयत्न करता हूँ। और इसकी पावर के बारे में क्या बोलूं,
आज जितने भी आप नेटवर्क में लोग देखेंगे, कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए, आपके और मेरे बीच में जो आपके टॉप अपलाइन आते हैं, जो मेरे डायरेक्ट फ्रंटलाइन है, विवेक सक्सेना जी, वो उससे बने, उसके बाद में शुरू हो जाइए, कहीं से भी आप शुरू हो जाइए। चाहे आप संतोष यादव जी का नाम लें, जिनके 17-18 लाख रुपए की इनकम है, संजय यादव जी का नाम लें, आप रिजवान खान का नाम लें, आप किसी भी व्यक्ति का नाम लें, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इसको अपने जीवन में उतारा एंड उनकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हुई। जब इसको शुरू किया था तो एक दिन का ये सेशन मैं किया करता था, बट दिन कंटेंट इसके इतने बढ़ते चले गए, या सिखाने को इतनी चीजें हैं, फिर 2 दिन हुआ, आज 3 दिन भी फ्रैंकली कम पड़ते हैं। एंड देन इट इज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि ओनली आई स्पीक, इट इज आई, मैं बोलने से ज्यादा मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल क्रियाएं आपको कराता हूँ, एंड वो आपके फोन में रहती है, ताकि आप मेरे 3 दिन के अलावा भी आप उसको प्लग इन करके जब मर्जी अपडेट रोज करो, एंड देन यू शेयर योर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आप अपने उसमें आप बांटते हैं। अनुभव मीन्स लाइक आपको हाउ यू फील, सो व्हेन पीपल दे शेयर देयर फीलिंग्स, सो उनके अंदर पे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से क्लीन हो गए। सो इन शॉर्ट इट्स ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, सो जिसकी वजह से ही हो पा रहा है, अदरवाइज मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, सो जिसकी वजह से इट हैपेंस, सो इट ऑल सेड एंड ऑल इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो जैसे मुझे किसी ने कहा, एक मेरे व्यक्ति हैं जो आज यूसीडी हैं, उन्होंने कहा सर मैं स्पेशली इसको इसलिए लेने आया हूँ क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि ये वो चीज है जिसको लिए बिना अगर आप मर गए ना तो आपको दोबारा पैदा होना चाहिए, केवल इसको सीखने के लिए। सो मैं आई वाज सो एक्साइटेड टू कम एंड लर्न दिस। सो ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों के व्यूज हैं, बट डेफिनेटली इट हेल्प्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल अटेंड करेंगे सर, और हमने जैसे बोल दिया है सर। बाकी सर इसी तरीके से आप ब्लेस करते रहिए, बस आपका थोड़ा कांटेक्ट मिल गया है सर, अभी उड़ा देंगे सर हम लोग। और जस्ट गिव नहीं, डेफिनेटली आई मीन देखिए, मुझे हर उस शख्स से बहुत प्यार है जो ईमानदारी से ग्रो करना चाहता है, सीखना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। और आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप मेरे लिए आप बहुत स्पेशल हैं। आपको याद होगा, आप मुझे चेन्नई एयरपोर्ट पे मिले थे, मैं अपने स्पिरिचुअल ट्रिप से आ रहा था, तो वी शेयर्ड सम, हमने ज्यादा नहीं, आधे घंटे का समय था मेरी और आपकी फ्लाइट में, सो हम इकट्ठे बैठे, वहां से हमारी बातचीत शुरू हुई थी रूबरू फिजिकली। तो जब भी आपने मुझे पुकारा, आपने अपनी पर्सनल समय के लिए, किसी के लिए भी, मैं हमेशा आप आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर द एंटायर टीम एंड एनीबडी। अगर मेरे समय देने से अगर किसी का भला होता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। बहुत अच्छा लगा सर आपने जो वन लाइन्स बोली अभी। थैंक यू सर, बस इसी तरीके से ब्लेस करते रहिए सर। और बाकी जितने भी लोग सर, अभी भी 2500 लोग बैठे हुए, मतलब खाना नहीं खाएंगे लेकिन सर आपको सुनने आए हैं यहाँ पे, तो सर थैंक यू मैंने सो मैंने मच। मैंने भी लिखा यार भाई, या आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू, आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड इट इज माय प्लेजर। आप लोगों से बात करके मेरा मूड और भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। आई एम फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम अ बंडल ऑफ एनर्जी नाउ, सो इट इज माय प्लेजर, राइट। सो वी हम दोनों ने, एक तरफ आप हो, एक तरफ आप और आपकी टीम है, दूसरी तरफ मैं अकेला हूं, तो मुझे न सिर्फ मैंने आज आपको कुछ एनर्जी दी है, बल्कि आप इतने लोगों की एनर्जी भी मेरे अंदर आई है, and that's what life is all about. So keep on learning, guys, keep on progressing. So many good things are waiting for you, and always remember, never ever give up, and just continue. All the best. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you.